Welcome back. We're still in conversation with cancer specialist Dr. Bhavna Sirohi. Bhavna, talking of caregivers, what are some things caregivers can keep in mind? अगर आप किसी कैंसर से पीड़ित इंसान की देखभाल कर रहे हैं, तो आप वो कौन सी चीजें हैं जो आप दिमाग में रख सकते हैं जिससे केयर भी अच्छी हो जाए और आपका जीवन भी बिल्कुल उलट पुलट ना हो जाए? केयर गिविंग सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कैंसर का, क्योंकि जैसा मैंने कहा वेस्ट और ईस्ट इंडिया में सबसे अच्छी बात जो है हमारी वो है फैमिली। फैमिलीज जो हैं, अब एक पेशेंट के साथ हमेशा 4 जने 5 जने आते हैं जो कि पेशेंट के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। सपोर्ट सिस्टम्स जो हैं इंडिया में अमेजिंग, यू नो, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। In the West, I would have a patient come alone, or, you know, they would come with somebody who would be keen to rush off to their workplace or whatever. So, but we have to remember that, you know, yes, you're looking after your loved one, but it's important that you look after your health as well. It is extremely important that mentally you stay together and with it and positive. And also, when you have a cancer patient, it's very important to, you know, keep in mind that, you know, hope is very important. Hope and trust for the patient. So to say things like, you know, to say negative things to a patient, right, it's very important what you say to the patient as well. Right. Diet is very important. Nutrition is very important. Going on with day-to-day life is very important. Right. And also the patient, whom is the patient interacting with? Yes. Sometimes, you know, friends, family, well-wishers, they come. आपसे मिलने तो आते हैं, मगर वो C word पे ऐसे, cancer word पे ऐसे dwell करते हैं कि patient is feeling depressed. Absolutely. You keep them away from you. You know, anybody who brings negativity, you try and दूर रखो. Okay. I had a patient who used to go for a walk in the morning. एंड उन्होंने वॉक जाना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी वो जाती थी उनके बाल नहीं थे, कीमोथेरेपी चल रही थी, तो जो भी वॉक करने वाली लेडीज थी, दे वुड जस्ट मेक सच अ बिग डील अबाउट इट एज इफ शी इज अबाउट टू डाई, बट शी हैड अ क्यूरेबल ब्रेस्ट कैंसर. So, you know, I went to the RWA there and I did a talk with the whole Resident Welfare Association, and, you know, it changed their perspective on how to see cancer. So doing these kind of awareness talks helps, and also encouraging the patient to be as normal as possible as a caregiver. You lead your life and let the patient also as much as possible lead a normal life. So अगर वो काम पे जाना चाहते हैं and कैंसर का इलाज चल रहा है, तो let them do it. Let them go to work. Why not? अगर वो physically fit है, able है, तो जाने दो. Okay. और अगर, you know, I always say listen to your body. So, you know, if you're feeling tired, yes, watch TV, lie down. But if your body is telling you, you know, I want to do something, don't pull them down. As a caregiver, you know, that's your first thing, is to support the patient in whatever they want. And also as a caregiver, I feel India में ये बहुत, मेरी अपनी फैमिली में था कि उनको मत बताओ कि उनको कैंसर है. जी. नानी जी को ये है कि उन्हें मत बताओ कि उन्हें कैंसर है. आप जो है पीछे से पेशेंट्स खड़े होके बोलते रहते हैं, नो, डोंट से एनीथिंग. But I feel that, you know, as a caregiver, as an adult, you know, we have a right to make our own decisions. हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, हम एडल्ट हैं, 18 साल पे हम वोट कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं 18 साल के बाद, जो मतलब हमारे मन में है. तो फिर अगर आप 45 साल के पेशेंट होके मेरे सामने आते हैं, आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो और आप एक कैंसर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता नहीं कि आपको कैंसर है? अंदर से पता है, पर आप वोकलाइज क्यों नहीं करते हैं? आई थिंक, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी टॉक अबाउट इट. और कहीं लगता है कि कुछ दबा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कुछ बहुत ही गंभीर टाइप ऑफ कैंसर होगा, वो छुपा रहे हैं मुझसे. एब्सोल्युटली. और कई बार ऐसा होता है गाँव में, मैंने देखा है कि वो जैसे लेडीज आती हैं, वो बताना नहीं चाहते उनको कैंसर है और फिर उनका इलाज नहीं कराते हैं. तो दो तरह पहलू हैं. एक तरफ ये है कि एजुकेटेड हैं, दोनों तरफ हो सकता है, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, पर दोनों एस्पेक्ट्स देखे हैं मैंने इंडिया में. एक तरफ इसलिए नहीं बताते हैं कि उनका इलाज नहीं कराते हैं, दूसरी तरफ नहीं बताते हैं कि इनको जो है सदमा ना लगे और पता ना हो. बट मुझे लगता है अगर एक मरीज को पता है कि उसका क्योरेबल कैंसर है, तो वो सब कुछ करेंगे उसका इलाज कराने के लिए. उन्हें पता लगे कि खांसी जुकाम की तरह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा 3 महीने के इलाज से, 6 महीने के इलाज से. सो व्हाई वुड यू नॉट गो फॉर इट? यू हैव एन 80% चांस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ इट. You would go for it, but the patient needs to know that. True. And the other aspect is they also need to know that I have 6 months to live. You know, अभी मैंने एक पेशेंट देखे बिजनौर में, उनकी मदर है 64 की. उन्होंने कहा हम उन्हें बता देंगे तो वही जैसे मेरी नानी जी वाला, तो वो उनके बहुत सदमा लग जाएगा. मैंने कहा आप उन्हें मेरे पास लाओ, हम सब बैठ के बात करते हैं. आई विल प्ले इट बाय द ईयर एंड आई विल सी हाउ शी इज.
And I asked her whether she wants to know. He says कि लाली मुझे सब कुछ बता दे. कहने लगे मैंने I have had a good life और मुझे सब पता हो कि क्या तो है. कहीं उसको ना अंडर एस्टिमेट नहीं करो. अंडर एस्टिमेट नहीं करो. और वो पढ़ी लिखी नहीं थी. मैंने उन्हें बताया, कहने लगी 6 महीने हैं मेरे पास इलाज से या इलाज के बिना, मुझे सारे धामों की यात्रा करनी है. तो यू नो दे आर टेकिंग हर on these things. So, you know, you have a wish in your life sometimes that you want to do. You may want to make a will. You may want to. So why hide it? So it's denial of a right also. Denial of a right. So patient has a right to know everything. Yeah. And जो भावना अभी आपने कहा कि हम जब किसी को नहीं बताते या किसी को बता देते हैं, जो internal will होती है, even for the patient, the will to become okay, the will to survive. Medical research has proved that the internal will plays a huge role in recovery. Absolutely. Being positive is so important. I have seen patients who continue working during their chemotherapy. Most of them actually sail through it. They come, have chemotherapy, they go to work, they come back. I had a teacher, I had to schedule her chemotherapy according to, you know, when she would come, either the afternoon या सुबह 6 बजे 7 बजे. नर्सेस को सुबह बुलाना पड़ता था कीमो देने के लिए. And I saw that, you know, she sailed through it. It's the will, you know, the positive attitude which makes a huge difference in how you take on life and take on, you know, what you faced with. I mean, you have cancer. I have a friend's mother who was diagnosed with cancer 25 years ago. And her grandchildren, everybody is devastated. But, you know, she said to them, I fought it 25 years ago and I'll fight it again. And I will get rid of it again. She's just having radiotherapy now. And hopefully she will fight it. Wonderful. You know, and when you do this, when you don't isolate yourself, yes, when you're allowed to be mainstreamed, yes, then आप देखिए कितने और लोगों को आप sensitize करते हैं कि हवा नहीं है. yes, you know, हमको किसी वहाँ पर कोने में recovery के लिए नहीं डालना. yes, it's a part of the mainstream. Absolutely. You know? I mean, the patients and their relatives are the best advocates about cancer, you know. Whether you are cured or not cured, you are the best advocates because, you know, you've been through the journey and you're able to vocalize and tell that, you know, yes, I got cured, I beat it, and you know that you can do things that, you know, will help you prevent cancer. In quite a few patients, we are able to find some risk factors. Risk factors is, you know, that there's more likelihood you will get, say, breast cancer if you don't breastfeed, or if you've taken an oral contraceptive pill for a long time, or hormone replacement therapy, or if your waist circumference is larger, you know, if you have a diet which is rich in saturated these correlations are coming out. These are coming out, you know, these are called risk factors. Okay. So, you know, we are able to say that if you do this, you're more likely to get this cancer. So, you know, when every interaction I have with the patient and their family, I try and inculcate that. So let's say if I see a patient with liver cancer, I would say that, you know, आपने hepatitis B का vaccine लगवाया है कि नहीं लगवाया है, because, you know, again, hepatitis B vaccine is something, you know, which will prevent a kind of liver cancer. Then a cancer genetic होता है या environmental influence से होता है. तो genetic तो बहुत कम है, less than 5%. 95% it's in your hand, you know. But there are some things that you can do, like don't chew tobacco. Okay. In India, in the West, it was smoking. In India, it's kheni, zarda, the smokeless tobacco. And it's becoming like an epidemic in proportion. You're absolutely right. I mean, I was doing a camp in a tiny village called Thamblau in Rajasthan. 1,500 is the population. And I went to a school and I asked the kids to raise hands ki tambaku kaun khate hain. About 10 kids raised their hands. And the age ranged from 10-year-old to 17-year-old. The whole school had about 30 kids. तो मैंने पूछा आप क्यों खाते हैं? तो उन्होंने बताया कि पापा के लिए किराने की दुकान पे लेने जाते हैं, तो फिर हम भी थोड़ी सी ले लेते हैं. तो अब जो मरीज देख रही हूँ मैं, 18 साल से 24 साल के मरीज हैं जिनको मुंह का कैंसर हो जाता है, जिसको कि ठीक करना बहुत मुश्किल है, और उसकी सर्जरी जो है बहुत म्यूटिलेटिंग होती है. मतलब जो है आपको ये जबड़ा निकाल दिया, तो मतलब वो मुश्किल से ठीक हो पाते हैं पेशेंट्स. इस यंग एज में हो जाए, एंड द होल लाइफ आप उसके साथ जिए, इट्स ओवर. आई थिंक नहीं, लाइफ इज ओवर एंड ऑल्सो यू डाई सो अर्ली. एंड ये वो चीज है जो आपके हाथ में है. आप तंबाकू है, पान मसाला है, खैनी, जर्दा,
ये सब चीजें ना लें। ये सब किसी ना किसी मात्रा में खराब होती हैं। हाँ, दे आर कार्सिनोजेनिक। WHO ने एक वो लिस्ट ऑफ कार्सिनोजेंस पब्लिश की है जी। उसमें जो है ये कार्सिनोजन है, ये जो इसमें जो है तंबाकू वो है, इससे कैंसर होता है। स्मोकलेस टोबैको है और ये इंडिया में हर जगह है। मतलब आप किसी भी गांव में चले जाइए, कोई ना कोई बच्चे से लेके औरतों से लेके बीड़ी पीती हैं औरतें गाँव में जाए अगर आप, हुक्का पीती हैं जी। तो ये सब जो है आप थ्रू आंगनवाड़ी आशा आप ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ये गलत है। और बच्चे तो सबसे प्रिय होते हैं। लोग कहते हैं अपनी जान दे देते हैं हम बच्चों के लिए, तो जान छोड़िए, तंबाकू ही छोड़ दीजिए पहले। एब्सोल्युटली। आप छोड़ें तो वो भी कुछ मात्रा में, प्रोबेबिलिटी कम करिए कि वो भी लेंगे। उन्हें फल खिलाइए। डाइट का बहुत बड़ा रोल है कैंसर में। अब जैसे कि अगर आप ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं जी, तो उससे जो है कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का। बहुत मसाले खाते हैं उससे स्टमक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, वो कहते नहीं कि हल्दी ज्यादा डालो, मिर्ची ज्यादा डालो, वो सारे जो कुछ भी है वो जला बला के निकाल देगा, हेल्दी है। नहीं, ऐसा कुछ। जैसे भारत में देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में स्टमक कैंसर बहुत ज्यादा है और सेंट्रल इंडिया में। वो क्यों है? क्योंकि वहां पे जो है उनकी डाइट की जो शैली है थोड़ी अलग है। जम्मू कश्मीर में स्टमक कैंसर वो कांगड़ी है, यहाँ पे रखते हैं, तो उससे जो है इरिटेशन होती है। सो एनी ऑफ दी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये सारे हमारे हाथ में हैं। बस हमें जो है एजुकेट करना है पॉपुलेशन को और पेशेंट्स को कि आप ये मत करिए। आप जो है खाना सरसों के तेल में बनाइए, डालडा में या घी में ना बनाइए। सरसों का तेल हर गांव में अवेलेबल है। शहरों में ऑलिव ऑयल हुआ या फिर वेजिटेबल ऑयल हुआ, सनफ्लावर ऑयल वगैरह, इन सब चीजों से खाना बनाइए। और जो है एक्सरसाइज करिए। अब मरीज मुझे बोलते हैं हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते जिम वगैरह जाना, पर जिम जाने की क्या जरूरत है? आप सीढ़ियां चढ़िए 10-15 बार, आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए। और जैसे मेरी मम्मी बोलती है एक्सरसाइज कर ली, तो दैट घूमना इज नॉट एक्सरसाइज। घूमना ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपके दिल की धड़कन बढ़े, थोड़ा पसीना भी आए और आपको जो है थोड़ा सांस फूले, दिल की धड़कन बढ़े, तो वो एक्सरसाइज होती है। उसमें आप अलग तरह के एंडोर्फिन्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, जिससे कि कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। जिनको कैंसर है और वो भी अगर एक्सरसाइज करते हैं, तो स्टडीज में जैसे ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर, आंतों का जो कैंसर है, उनकी स्टडीज में दिखाया गया है कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनके कैंसर वापस आने की संभावना भी कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज इज इन योर हैंड्स अगेन, डाइट इज इन योर हैंड्स, टोबैको इज इन योर हैंड्स, अल्कोहल इज इन योर हैंड्स। अल्कोहल मत पीजिए, एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज बैड। कई बार बोलते हैं रेड वाइन पी ली थोड़ी बहुत, कोई स्टडी बोलती है इससे फायदा होता है, या 30 ले लो, वो चलेगा। Okay. चलो ठीक है, बट आइडियली आई थिंक अल्कोहल इज बैड, इट डज इंजर योर लिवर. Human body is not designed to break up alcohol. No. It's very clear. Absolutely right. And so whatever you're putting in your mouth, think, don't insult your body. Right. Have some respect for your body. And try and exercise, diet, so all these things I feel like. And infections is the other cause of cancer. Okay. And again, that is preventable, because like cervical cancer is caused by HPV. अभी मुंह का कैंसर भी उसी वायरस से होता है. So वो हाइजीन इशू है. हाइजीन इशू है, पर्सनल हाइजीन इशू है. एंड जैसे गाँव में जैसे मैं जाती हूँ कैंप्स वगैरह, तो काफी स्थिति सही नहीं है. और ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि टॉयलेट्स की सुविधा करें. वो इसीलिए है कि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, सैनिटरी पैड्स है वही धो धो के यूज करते रहते हैं, सेक्सुअल हाइजीन नहीं है. तो these all cause cervical cancer. So cervical cancer is the commonest cancer in rural India. Okay. Breast cancer is the commonest cancer in urban India. All right. For women. All right. And I'm not going to go in for another short break. Okay. But when we come back, we'll want to understand from you एक और पहलू ये कि आपने बोला ना, जो हम अपनी बॉडी में खाएं और डालें उसका असर होता है. हम जानना चाहेंगे जो हम अपने दिमाग में डालें और जो स्ट्रेस होता है उसका कैंसर से क्या रिश्ता है. कितनी स्टडीज हैं, आपने अपनी आई थिंक एक्सपीरियंस में क्या क्या देखा है. वीड लाइक सम शेयरिंग ऑन दैट, बट राइट नाउ वी टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक.